हेलो, अवाज આવે છે? અવાજ હા, ઓડિબલ ઓડિબલ. ઓકે. કેમ છો? કેમ છો તબિયત સાહેબ? બસ સરસ. સારું, તમે કેમ છો? બસ ફાઇન. આજે પહેલી વાર દાહોદ થી છું. અચ્છા, દાહોદ આવ્યા છો ને? આમ નહીં તો દર 7 તારીખ અમદાવાદમાં જ હોતી હતી. અચ્છા, એક વર્ષથી આ 13મી મીટિંગ છે ને. હેલો, હેલો, ધીસ ઇઝ 13 મીટિંગ. ઓકે. તો 13મી દાહોદમાં છે. 13મી મીટિંગ છે. Sure. હા, યસ. અચ્છા, ખત્રી સાહેબ આવી ગયા છે? હા. ઓકે ઓકે. ગુડ ઇવનિંગ સાહેબ. હા સાહેબ, કેમ છો? ગુડ ઇવનિંગ સાહેબ. હા, કેવું છે એ બાજુ? વરસાદ પડે છે? નહીં પડતું? ના, નહીં પડતો સાહેબ. નહીં પડતો ભરતભાઈ? દાહોદમાં નથી. ફર્સ્ટ મીટિંગ ઇન દાહોદ. હા, કરેક્ટ. નહીં તો દર વખતે 7 તારીખ અમદાવાદમાં જ આવે. હા, સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. હોસ્પિટલમાં બધું અહીં તો હોય જ ને લેક્ચર લેવાનું, એટલે ત્યાં જાય. હા, ના ના, બરોબર છે. કારણ કે પેલા મોબાઈલમાં મજા ના આવે. હા, સાચી. હેલો, અવાજ આવે છે ડેક્સ્ટર? હા મારો? હા, હાજી. શાંતિકર આવે છે ભાઈ. સાહેબ, તો આપણે થોડું ચાલુ કરીએ. શ્યોર શ્યોર શ્યોર. હા, તમે તમારું જરા 1 મિનિટનું વખતે આપી દો એટલે પછી હું ચાલુ કરું સાહેબ. હા, હાજી હાજી. હા, આવે છે, આવે છે. આવે છે ને? ઓકે. તો મિત્રો, સાથના જે દર મહિને આપણે આ સિકલ સેલ માટે ઘણા મહિનાઓથી મળી રહ્યા છે ને અલગ અલગ વિષય પર ચર્ચા કરતા હોઈએ છે. એક સરસ પ્લેટફોર્મ આપણો બની ગયો છે જ્યાં આપણે વી ડુ ધ એક્સચેન્જ ઓફ આઈડિયાઝ એન્ડ શેર અવર એક્સપિરિયન્સ. એના અનુભવો ખૂબ સારા રહ્યા છે બધા માટે. તો એકવાર ફરી આ જુલાઈ મહિનાની 7 મીટિંગમાં આપ સૌને આવકારું છું, અભિનંદન કરું છું જોડાવા માટે. તો આપણી સાથે આજે ઘણા બધા લોકો છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બધાને વેલકમ નથી કરતો, પણ બધાને વેલકમ કરું છું. સિકલ સેલ મેનેજમેન્ટમાં એક ચેલેન્જ એવું રહ્યું છે વર્ષોથી કે આપણે એક્ઝેક્ટ વીઓસી નો ઇન્સિડન્સ નથી જાણતા. વાઝો ઓક્લુઝિવ ક્રાઇસિસ કે પેન ક્રાઇસિસ એક્ઝેક્ટલી પેશન્ટને કેટલા થાય છે, આપણી પાસે એક ખાલી રફ એસ્ટિમેટ છે, નાની મોટી સ્ટડીઝ થયેલી છે. તો ચોક્કસ એ દિશામાં કામ આગળ વધ્યું જ છે, પણ સાથે સાથે જરૂરી છે કે જ્યારે સિકલ સેલ ડિઝીઝ વાળી લેડી પ્રેગ્નન્ટ થાય અથવા તો પ્રેગ્નન્સી પહેલા અને ડ્યુરિંગ 9 months ઓફ પ્રેગ્નન્સી એને કેવી ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે, તો આજે આપણે એ વિષય પર ચર્ચા કરશું. અને આપણા નસીબ છે કે આજે આપણી સાથે ડોક્ટર શાંતિકર છે. ડેક્સ્ટરભાઈને વિનંતી કરું કે ડોક્ટર શાંતિકરનો પરિચય આપે અને પછી શાંતિકરભાઈ તરત એમની ટોક શરૂ કરશે. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. અનિલ સાહેબ, પહેલા તો દરેક સાતની અંદર જે એટલા પાર્ટિસિપેટ છે એમનો મેં સ્વાગત કરીએ છીએ. ઘણા સમયથી આપણે સિકલ સેલ પર ચર્ચા કરીએ છીએ, એટલે આપણે ચર્ચાનો મહત્વ એ છે કે લોકો સમજી શકે, અવેરનેસ આવી શકે, એ જ છે. અને આપણે દર મહિનાની 7 તારીખે મળીએ છીએ. આજે આપણો 13મો એટલે કે 1 વર્ષ થઈ ગયું છે. 1 વર્ષથી આપણે સિકલ સેલ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આજે આપણી સાથે જે વ્યક્તિ છે ડોક્ટર શાંતિકર વસાવા, એ પોતે ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, પોતે ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટીમાંથી આવે છે અને ટ્રાઇબલ વિસ્તારની અંદર જ
એમની પોતાની મેટર્નિટી એટલે ગાયનેકની પ્રેક્ટિસ કરે છે એઝ વેલ એઝ એમને ઘણા બધા અનુભવો છે. તો આપણે આ વખતે ગાયનેકને ફિમેલને પડતી સિકલ સેલ ડિઝીઝમાં તકલીફો, ડિલિવરી સમયની બી વાતો આપણે કરીશું અને ચેલેન્જીસ શું શું એ સમયમાં આવે છે જ્યારે સિકલ સેલ ડિઝીઝ જે ફિમેલ એઝ એ પ્રેગ્નન્ટ ત્યાં આવે છે અથવા તો બીજી બે શરૂઆતના પીરિયડની અંદર આવે છે. તો ડોક્ટર શાંતિકર સાહેબ રાજપીપળાથી બિલોંગ કરે છે અને એમનું નેટિવ સાગબારા છે. એટલે એ આખું ટ્રાઇબલ વિસ્તારથી ઘણી રીતે પરિચિત બી છે અને હંમેશા ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટીની સાથે જોઈન્ટ થયેલા છે, જેથી કરીને એ એમના અનુભવો અથવા તો એમની જે ગાઈડલાઈન અથવા તો જે કંઈ છે તે આપણને સમજાવશે, જેથી કરીને આપણે આગળ કેવી રીતે વધવું તેનો અનુભવ લેશે. આપણી સાથે ભરત પરમાર સાહેબ પર છે, જે પોતે દાહોદમાં છે, એટલે એમને પણ ઘણું બધું આ વિશે નોલેજ છે. ખત્રી સાહેબ છે, હમણાં અંકિત સાહેબ પણ આવશે. એટલે આપણી જે ટીમ છે તે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કરે છે, એથી ગ્રાઉન્ડમાં શું પરિસ્થિતિ છે તે એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે, જેથી કરીને આપણે સરકારશ્રીને પણ અને બીજા લોકોને પણ જો કદાચ રજૂઆત કરવાની જરૂર પડે અથવા તો આપણે કોઈને ગાઈડલાઈન આપવાની જરૂર પડે તો આપણે કરી શકીએ, જેથી કરીને બેનિફિશિયરી લોકોને વધારે બેનિફિટ મળે. સરકાર તો ઘણું બધું કરે છે, પરંતુ એનાથી પણ વધારે આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકીએ એની માટેની એક પહેલ છે. એટલે હું ડોક્ટર શાંતિકર સાહેબને વેલકમ કરું છું આ સ્ટેજ પર. એમને વિનંતી કરું છું કે એમના જે કંઈ અનુભવો છે એ કંઈ કહેવા માંગે છે તે આપણી સાથે શેર કરે. ડોક્ટર શાંતિકર સાહેબ. હેલો, હા, અવાજ આવે છે ડેક્સ્ટર? ઓડિબલ. ओके, थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूंगा. गुजराती है लेकिन हिंदी में, ओके. बाकी सब लोगों तक भी हमारी बात पहुंच सके. हमारा मेन एम तो यही है कि पूरे देश और दुनिया के लोग सिकल सेल के बारे में अवेयर हो जाए और उसके बारे में आगे जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में सोचे, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूंगा. आज के इस 13th गुजरात सिकल सेल मीट साथ में जो कि मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन सिकल सेल डिसीज के ऊपर आज रखा गया है वेबिनार. उसमें हमारे साथ इस गूगल मीट में जुड़े हुए डॉक्टर अनिल खत्री जी, डॉक्टर अंकित परमार जी, डॉक्टर भरत परमार जी, डॉक्टर यजदी इटालिया जी, डॉक्टर कपिल, और YouTube और Facebook के माध्यम से हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए श्रोता सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा. आज मैं सबसे पहले सिकल सेल अवेयरनेस टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा, खास करके डॉक्टर डेक्स्टर पटेल जिन्होंने आज मुझे इस गूगल मीट में अपनी बात को साझा करने का, अपनी अनुभव को साझा करने के लिए मुझे समय दिया. उसके लिए मैं उनका धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ. और उनका जो काम है उसके लिए भी बहुत ही रात दिन वो सिकल सेल के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं, उसके लिए भी उनको धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूँगा. क्योंकि पिछले 12 एपिसोड से हम लोग सिकल सेल के बारे में बातचीत कर रहे हैं. सिकल सेल क्या है, सिकल सेल कैसे होता है, उसका कोजिस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्राइसिस क्या है, तो ये सब बातें हम पिछले 12 एपिसोड से हम करते ही रहे हैं. तो उसके बारे में हम ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूंगा. बहुत सारे एक्सपर्ट, सिकल सेल के एक्सपर्ट है, उन्होंने आज तक इस बात को शेयर किया है. तो ये जो सिकल सेल है, ये जो बीमारी है, ये आनुवंशिक बीमारी हम सब जानते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारे जो बाप दादा पितरों में होता था, उसके बाद उसके बच्चों में ये बीमारी हमारे तक आज तक पहुंची है. और ये जो सिकल सेल की बीमारी जो है वो एक्सपर्ट बताते हैं कि बहुत हजारों साल पहले जब पहाड़ों में मलेरिया आया, मलेरिया के कारण कई लोग मरने लगे, तो उसी से बचाने के लिए जो जेनेटिक ट्रांसफर हुआ, उसके कारण ये बीमारी सिकल सेल बीमारी का बीमारी आई हमारे आदिवासी लोगों में, खास करके ट्राइबल लोगों में ये बीमारी ज्यादा है. और वही लोग पहाड़ों में रहते थे, इसी के कारण ये अभी तक आदिवासियों में ज्यादा पाई जाती है. तो ये सिकल सेल जो बीमारी है उसका प्रकोप पूरे दुनिया में है. जहाँ ट्राइबल लोग, इंडिजिनस लोग रहते हैं, उनके एरिया में ये बीमारी
बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारे भारत की हम बात करें तो भारत में अब तक करीबन 1,75 लाख जितने सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट है और करीब 25 लाख के आसपास सिकल सेल डिसीज के पेशेंट है। ये ट्रेट और सिकल की जो बात है तो सिकल सेल का मतलब है सिकल यानी कि हाशिया, हिंदी में हाशिया बोलते हैं, ગુજરાતીમાં દાતરડું કહેવાય અને અમારી આદિવાસી દેહવાલી ભીલી ભાષામાં એને દાહલો કહેવાય। यानी कि जो हमारा जो आरबीसीज है, ब्लड में जो रक्त कण बोलते हैं वो ये सिकल यानी कि हाशिए के शेप में बन जाता है। नॉर्मली ये ओवल या गोल आकार में होता है, लेकिन ये सिकल के शेप में आने के कारण इस बीमारी को सिकल सेल नाम दिया गया है। तो गुजरात में सिकल सेल के ट्रेट जो सिकलिंग का जो मात्रा है अगर वो 50% है आरबीसी गोल में से 50% अगर होता है तो उसको सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं और जो 100% जो सिकलिंग होता है उसको सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। तो जो ट्रेट के पेशेंट है गुजरात में 9 लाख के आसपास है और डिसीज के पेशेंट है, एनीमिया के पेशेंट है 80,000 के आसपास पेशेंट पाए गए। तो इतनी सारे मात्रा में सिकल सेल के पेशेंट होने के बावजूद आज तक हमारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। बहुत पुरानी बीमारी होने के बावजूद हमारे लोगों में इस बीमारी के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। तो ये इसके कई कारण हैं, हमारे एक्सपर्ट ने उसके बारे में बात की है तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट मेरा जो सब्जेक्ट है आज का सिकल सेल और प्रेगनेंसी, तो उसी के ऊपर आना चाहूंगा। क्योंकि सिकल सेल सिकलिंग का होने का कारण है जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कोई भी कारण हो, वो चाहे डिहाइड्रेशन हो, वो चाहे इन्फेक्शन हो, वो चाहे कोई भी एक्सर्शन हो, जहां हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होने के कारण उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उसी दरमियान सिकल सेल जो पेशेंट होता है उसमें सिकलिंग का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है और उसी के कारण जो उसका जो साइड इफेक्ट है उसके कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। खास करके पेन क्राइसिस उसमें बहुत ज्यादा है। तो ये प्रेगनेंसी और सिकल सेल की जब हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में भी यही जो हमने बात किया कि एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में होने के कारण जो सिकल सेल डिसीज के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उसमें क्राइसिस में जाने का चांस बहुत ही मात्रा में बढ़ जाने की शक्यता रहती है। इसी तरह जो सिकल सेल जो पेशेंट है उसमें जो हाइपोक्सिया होता है उसके कारण भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, जो एंड ऑर्गन डैमेज होता है उसके कारण प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बात करें एबॉर्शन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बढ़ जाने का भी उसमें हो जाता है। प्री मेच्योर डिलीवरी यानी कि 9 महीने खत्म होने से पहले, 36 वीक्स प्रेगनेंसी खत्म होने के पहले डिलीवरी का चांस भी उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेसेंटल इंसफिशियंसी भी हो जाती है एम्बोलिज्म के कारण। तो इसमें आईयूजीआर और स्टिल बर्थ और एप्रोप्सिया प्लेसेंटा जैसे कॉम्प्लिकेशन की शक्यता भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है और हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो सिकल सेल का भी उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाता है और सिकल सेल प्रेगनेंसी में इतना ही हावी होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। और साथ साथ में उसके जो अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, एक्यूट स्ट्रोक है, एक्यूट एनीमिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वो भी बढ़ जाने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी में। तो हम सिकल सेल और प्रेगनेंसी को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पेशेंट के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण एक सब्जेक्ट है। खास करके हम किस तरह से हम जान सके ये सिकल सेल है या ये कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हमारे सामने जो आया है, जो पूरा थका हुआ महसूस कर रहा है, पूरा डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट का सांसें बढ़ रही है, पेशेंट सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो इस तरह के जो पेशेंट साइंस के साथ साइंस सिम्टम के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो इसमें हम क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? खास करके जो हम ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, तो पहले हमारे नज़र में तो सिकल सेल का ही आता है, तो अगर सिकल सेल को हमको जानना है, तो उसके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो स्क्रीनिंग होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और दूसरा जो है एचपीएलसी टेस्ट, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल डिसीज है वो जान सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट हमको करना चाहिए, और साथ-साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके साथ लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जो सिकल सेल जो बीमारी है, यो एंड ऑर्गन डैमेज करती है, यानी कि शरीर के हर जो ऑर्गन है उसके ऊपर इफेक्ट होना होने की चांसेस है। तो कोई ऑर्गन पे इफेक्ट है कि नहीं उसको देखने के लिए हमें सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और साथ-साथ में पेशेंट अगर आता है तो उसको कंप्लीटली वाइटल मॉनिटर हमको 20 मिनट पे करना चाहिए। उसका ऑक्सीजन लेवल भी हमको चेक करते रहना चाहिए, और सोनोग्राफी यूएसजी के माध्यम से हमें अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लेवल की सोनोग्राफी हमें करना चाहिए। खास करके वायबिलिटी के लिए 7 से 8 वीक्स में हमें सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। 11-14 वीक्स में हमें एंटी स्कैन करना चाहिए। 20 वीक्स के आस उसके बाद ग्रोथ के लिए हर 4 वीक ज़रूरी बनता है पेशेंट, और 7 मंथ पे ब्लड डोनर सोनोग्राफी की ज़रूरत, खासकर पेशेंट कहीं आयु नहीं हो रहा है के लिए उसको बराबर हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए कलर डॉपलर सोनोग्राफी करना ज़रूरी होता है। और अगर जो पेशेंट कंसीव को बेबी को सेल है कि नहीं उसको देखने के लिए हमें उसका एमनियोसेंटेंसिस, यानी कि हमें जो प्रेग्नेंट वुमन है बिफोर 20 में उस बोलते हैं उसको सैंपल नीडल के द्वारा सैंपल के उसको लेबोरेटरी करके आने वाले बच्चा जो है उसको सिकल सेल है, अगर है तो क्या है ट्रेट है, वो देखने के बाद हम पेशेंट है उसका चर्चा करके उसको आगे बढ़ाना है प्रेगनेंसी या उसको टर्मिनेट करना है, वो उसकी चॉइस होती है, वो पेशेंट के सामने हम रख सकते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन सिकल सेल पेशेंट में हमें करना चाहिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट सिकल सेल डिसीज का पेशेंट है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मली हम फोलिक एसिड और जो आयरन कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो हमें देना चाहिए, और उसको कंप्लीट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल उसका देखना, पल्स, ब्लड प्रेशर सब देखना, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है वो सब हमें देखना चाहिए। जहाँ तक पेशेंट क्राइसिस के साथ हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो हमारे लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है। एक स्पेशलिस्ट का ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए मैनेजमेंट के लिए पूरा एक गायनेक, हेमाटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, ये सब लोगों की एक टीम की जरूरत पड़ती है। आईसीयू फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ती है, खास करके प्रेगनेंसी विथ तो मेन जो कॉम्प्लिकेशन होता है खास के सिकल सेल क्राइसिस में, वो क्राइसिस को हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। खास अगर हम हाइड्रेशन पार्ट को देखें, हाइड्रेशन को हमें मैनेज करना है तो कंप्लीट कंट्रोल्ड फ्लूइड थेरेपी पेशेंट को हमें आईवी फ्लूइड थेरेपी देना चाहिए। हाइपोक्सिया मैनेजमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई, उसको कंप्लीट ऑक्सीजन देना चाहिए। अगर पेन है, पेन मैनेजमेंट का पार्ट है, तो अगर ज़्यादा नहीं है तो हम पैरासिटामोल, एनएसआईडी जो ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो दे सकते हैं। उससे अगर मैनेज नहीं होता है तो ओपियोइड है, मॉर्फिन वगैरह, वो हम दे के पेशेंट को पेन मैनेज कर सकते हैं। इन्फेक्शन पार्ट है, उसको कवर करने के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है, और मेन जो क्राइसिस में थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है, तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी हम दे सकते हैं, और प्रोफाइलेक्टिक एस्पिरिन भी इस पेशेंट में हम ऐड कर सकते हैं। साथ-साथ में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी-कभी जरूरत पड़ती है,
तो हमें ऐसे पेशेंट को ब्लड हमें रेडी रखना पड़ता है और कम्प्लीटली वाइटल मॉनिटर इस पेशेंट में हमें करना चाहिए। इंट्रापार्टम की हम बात करें पेशेंट को लेबर, ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट हमारे लिए होता है, क्योंकि पेशेंट मेनली लेबर में होता है, लेकिन साथ साथ में उसको क्राइसिस भी होता है। तो लेबर पेन से ज्यादा क्राइटिक पेन जो सिकलिंग जो पेन होता है वो ज्यादा होने के कारण उसको लेबर पेन का पता नहीं चलता। यहाँ पे मिस डायग्नोसिस होने का पूरा चांस हमें रहता है। पेशेंट लेबर में ही होता है लेकिन प्रेजेंट उसको क्राइसिस के साथ आता है, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस संजोग में पेशेंट को हमें देखना चाहिए लेबर में है कि नहीं पेशेंट, उसको एग्जामिन करके। और मेनली अगर पेशेंट को कोई क्राइसिस नहीं है और पेशेंट मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसे पेशेंट को हमें इलेक्टिव डिलीवरी के लिए हमें रेडी करना चाहिए। चाहे वो हम इंडक्शन कर सकते हैं, और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ऐसे पेशेंट में हम इलेक्टिव एलएचसीएस का भी हम उसको समझा सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं देना है इस पेशेंट को। दूसरा जो पोस्टमार्टम जो पीरियड वो होते हैं, हम जो सेकंड थर्ड डे बाथरूम में जाते जाते पेशेंट वहां के ही कोलेप्स कर गया, इसको हम कुछ रिसक्सिटेशन भी नहीं कर पाते। इस तरह की कंडीशन खास करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इस तरह का जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट को हमने देखा है। तो ऐसे पेशेंट में हमें मोबिलाइज कम से कम करना चाहिए, और जो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है वो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 7 दिन तक हमें देना चाहिए, और अगर सीजरियन है तो 6 वीक्स तक ऐसे लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन हमको पेशेंट को देना चाहिए। और जो बेबी का पार्ट है उसमें हम जल्दी से जल्दी उसका सिकल सेल जो स्टेटस है वो जान के पीडियाट्रिशियन के पास बेबी को आईसीयू में रखना चाहिए, और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए उसके ऊपर पूरा हमें मैनेज करना चाहिए। ये तो सिकल सेल क्राइसिस और पेशेंट के बारे में हम बात किया, लेकिन उसको अगर हमें रोकना है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के साथ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना हमारे लिए अभी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास इतना पहुंच नहीं पाए। अभी तो हम 10% लोगों को ही सिकल सेल के बारे में हम बता पाए हैं कि ये बीमारी क्या है, अभी 90% लोग उसको जानते ही नहीं। तो लेकिन अगर प्री कंसेप्शनल उसको काउंसलिंग करना है तो खास करके फोलिक एसिड उसको प्री कंसेप्शनली देना चाहिए, और साथ साथ में हाइड्रोक्सी यूरिया जो ड्रग है उसको हमें 3 मंथ्स कंसेप्शन के 3 मंथ्स के पहले उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि उसका टेरोटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है। और साथ साथ में अगर पेशेंट अल्कोहल लेता है, क्योंकि ये अल्कोहल टोबैको ये सब डिहाइड्रेशन का काम करते हैं, तो इस तरह की जो दवाई है वो हमको पेशेंट को समझाना चाहिए कि ये सब बंद करना चाहिए। जहाँ तक हेल्दी फूड की हम बात करें, हेल्दी फूड हमारे ट्राइबल लोगों में बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हमारे लोग जो राशन जो दुकान है वहां से ला ला के खा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे जो आदिवासी लोग कोरोना के बाद जो असर हुई है बहुत ही खराब असर हुई है, तो उसको हम अच्छे फ्रूट्स खाने की एडवाइस करेंगे, अच्छे ड्राई फ्रूट की एडवाइस करेंगे। मिल्क दूध तो मिलता ही नहीं, अगर ऐसी एडवाइस करेंगे तो ये इनके लिए नाइंसाफी होगी, लेकिन फिर भी हम हेल्दी फूड की बात लोगों में करना चाहिए। और खास जो वैक्सीनेशन है, इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोवैक्स है, इस तरह की वैक्सीन इस सिकल सेल के पेशेंट में हर साल लगनी चाहिए, ताकि जो ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट तक ना पहुंच पाए। और दूसरा जो बात है कि अगर हम सिकल सेल वॉरियर बनना चाहते हैं, सिकल सेल वॉरियर बनने की सोच रहे हैं, तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज को हमें अच्छी तरह से पहचान के हमें लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि हम अगर गुजराती हिंदी में बोलते हैं तो जैसे हमारे साथ कोई फ्रेंच या स्पेनिश लैंग्वेज वाला आके हमारे साथ बात कर रहा है, इस तरह से उन लोगों को ये हिंदी गुजराती लैंग्वेज लगती है। तो जो भी वॉरियर बनना चाहता है, इन लोगों को वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आना चाहिए, और इसी भाषा में अगर वो बात करेंगे, अगर उनके बीच में विश्वास बनाएंगे,
तो हम उन लोगों को सारे लोगों को समझा पाएंगे और उनको काउंसिल कर पाएंगे। तो ये अभी तक मेरी बात थी। खास करके हम सिकल सेल के बारे में अगर पेशेंट को बताते हैं, नया पेशेंट आता है ओपीडी उसके रिलेटिव्स के साथ, तो उनको पूरी समझ देनी चाहिए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम इतना बोल के छोड़ देते हैं कि आपको सिकल सेल है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये मम्मी पापा में से बच्चों में आ सकती है, इसीलिए आपको आई, इतना बोल के छोड़ देते हैं। तो ये इतना काफी नहीं है। उसको पूरा समझाना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये समाज की, पूरे समाज की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। नहीं तो क्या है कि वहां से उसका दूसरा जो चैलेंज है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि गांव में लोग, घर में लोग ये सोचते हैं, जहाँ पितृप्रधान संस्कृति है, जो उसका पति है वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ ठीक नहीं है, उसको अलग थलग करने का वहां पे प्रयास चालू। तो ये के बाद जो चैलेंज है वो भी लेडी फेस करना शुरू होती है। जैसे हमारे गायनिक में किसी को बच्चा नहीं होता है तो पूरा दोष जो पुरुष वर्ग है वो लेडीजों के ऊपर डालता है। इसी तरह से इस बीमारी में भी सामाजिक दूरी पर जो कोरोना में हम देखते हैं, उसी दूरी लोग घर में बनाना शुरू कर देता है। और तो दूसरा जो चैलेंज है वो पेशेंट सिकल सेल के साथ साथ इस तरह का चैलेंज। तो जो भी जानकारी हम पेशेंट को साथ साझा करें, उसके रिलेटिव्स के साथ साझा करें, वो पूरी तरह उसको साथ समझाना चाहिए, ताकि एक फैमिली उसको सपोर्ट और मेडिकल सपोर्ट पूरा उसको मिल सके। यही मेरी बात सिकल सेल और प्रेगनेंसी के बारे में थी। आप लोगों ने मुझे जो मौका दिया ऐसी बात रखने के लिए, उसके लिए मैं सिकल सेल टीम सबको, और साथ साथ में उसको प्रिवेंट करने के लिए सिकल सेल अवेयरनेस टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वॉरियर्स काम करें, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के साथ में ये मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। Dexter bhai, are you there? I think Dexter is audible, but Dr. Shantikar, thank you so much. आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी जानकारी दी। थैंक यू सर। आपने कवर कर ली, अर्ली प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और न्यूबॉर्न तक। तो आई थिंक ये कॉम्प्रिहेंसिव फोकस दिया है सिकल सेल डिजीज एंड प्रेगनेंसी। तो शांतिकर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको मैटरनल मॉर्टेलिटी कुछ ज्यादा पहले ज्यादा थी, अभी कुछ कम हो रही है? जी सर, मैटरनल मोर्टालिटी मैं अभी 5 साल पहले की अगर बात करूं, मैं 20 साल से राजपूत में काम कर रहा हूं, तो उस टाइम पे सिकल सेल डिसीज के पेशेंट में मैटरनल मोर्टालिटी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि पेशेंट को, हमको या डॉक्टर को, किसी को पता नहीं रहता था कि उसको सिकल सेल है, या पहले उसको पता ही नहीं रहता था। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ ही हमारे पास आते थे। लेकिन अभी हमारे कई सारे एनजीओज इस तरह के गांव में काम करते हैं, और सरकारी जो प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सिकल सेल कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी के माध्यम से पहले से ही उसके बारे में हमको पता चल जाता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है सिकल सेल डिसीज का, हम पहले से ही उसको हायर सेंटर में डिलीवरी का जो सलाह देते हैं, उसी के कारण मोर्टालिटी कम हुई है। जी सर। एक और बात थी कि फर्टिलिटी में कोई इश्यूज आते हैं क्या? मतलब जी सर, रीजंस क्या रहते हैं? फर्टिलिटी में तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फर्टिलिटी डिसीज वाले पेशेंट में ज्यादा है ऐसा नहीं है। वो तो नॉर्मली फर्टाइल हो के ही, जो नॉर्मल फर्टिलिटी रेट है उसी के माध्यम से ही नॉर्मली कंसीव हो जाते हैं। तो अर्बन एरिया पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। नाउअडेज आई थिंक इट्स अराउंड
ट्राइबल एरियाज में भी आप उसी तरह का पैटर्न देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर ओपीडी बढ़ता जा रहा है? ये सिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं सर, या नॉर्मल? नॉर्मल भी और सिकल में पर्टिकुलरली? जी सर, नॉर्मली भी अभी तो जो रिमोट एरिया है, दूर के एरिया है, उसी में भी अभी तो इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम जो पहले एक्सपेक्ट करते थे फैटी पेशेंट है, पीसीओएस है, इनको ज्यादा है, लेकिन अभी तो हम हर पेशेंट, हर 60 to 70% पेशेंट में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज हम देख रहे हैं। नॉर्मल फॉलिकल देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती है कि कैसे हेल्दी फॉलिकल हमको मिले। तो ये गांव में भी अभी बढ़ रहा है सर, गांव में भी इनफर्टिलिटी अभी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं कई सालों से, राजपीपला तो मेरा हॉस्पिटल है, लेकिन सागबारा भी मैं यहाँ पे हर थर्सडे फ्राइडे ओपीडी देखता हूँ बहुत सालों से। तो ये गांव में भी इसका प्रमाण अभी बढ़ रहा है जी। आई थिंक चैलेंजेस सेम ही है जैसे सिटी एरियाज में, मेट्रो जी सर, पॉलिटन सेंटर्स पे वही चैलेंजेस आप पेरिफेरी में एरियाज में भी सिमिलर? जी सर। અંકિત ભાઈ આપનો બી ખૂબ મોટો અનુભવ છે. આઈ થિંક તમે સ્ટાર્ટ કર્યા હશે નાની છોકરી પણ ઘણી પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગઈ હશે. because you have spent years treating. So what is your experience? थैंक यू, इट वाज अ वेरी वंडरफुल टॉक डॉक्टर शांतिकर। मैं 2-3 चीज एक्चुअली ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक तो हाइड्रोक्सूरिया बंद करना है। व्हेनेवर जब भी कोई भी सिकल सेल डिसीज मदर पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड में ही हाइड्रोक्सूरिया बंद करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो और प्रेगनेंसी पता चल रही है तो आपको इमीडिएटली हाइड्रोक्सूरिया बंद करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हाइड्रोक्सूरिया जो पेट में पल रहे बच्चे उसके लिए हानिकारक हो सकती है। I would like to highlight, and I tell all the gynecologists that HPLC should be compulsory whenever there is a first visit of a patient to a gynecologist. Otherwise, we'll miss a major chance to prevent a hemoglobinopathy patient in our practice. Because I'm a pediatric hematologist, so I come across all the hemoglobinopathy patient day to day. And I think it is a failure from our part to recognize these parents early who are either sickle cell trait or thalassemia trait, and they go unrecognized till the patient himself or herself diagnosed as a thalassemia major or sickle cell disease, and then will retrogradely check for the parents. Rather than it should be a compulsory checkup for as important as like HIV. Whenever a patient comes to in your first contact, irrespective of trimester, as early as possible, HPLC to be done of patient, that is mother as well as father. So these are the two things I would like to highlight as far as the gynec patients are concerned. And hydroxyurea is to be stopped immediately whenever there is a pregnancy has been confirmed. Thank you. That whenever I raise the issue of fertility, because before getting pregnant, say 30 to 40% of the females, they seek treatment for the first opportunity for an obstetrician to go for an HPLC rather than to wait for a. So Ankit, I very much concur with you. What you have said is very important. So another point, I think we'll have Dr. Bharat Bhai. You must be audible. Hello. Others suffering from sickle cell disease. Do you find any significant, differences between normal newborns regarding? Hello. May I audible? Status and other things, please. Hello. May I audible? Yes, sir. Very much audible. હું એક બીજો પોઈન્ટ એડ કરવા માંગુ છું. સિકલ સેલ પ્રેસિપિટેટિંગ સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ. One instance is menstrual period. During the menstrual period, there is a precipitation of sickle. Second, if there is a pregnant woman having maternal malnutrition and diagnostic criteria is
one hemoglobin less than 8, when height is less than 145 centimeters, and weight is less than 40 kg. Less than 40 kg weight, height is less than 145 centimeters, and hemoglobin less than 8, there is a maternal malnutrition. If we manage maternal malnutrition correctly, so it does not precipitate this crisis during the pregnancy. Also, due to this pregnancy, there are two main complications. One already told by Dr. Vasav Sahib, there is a preterm baby, but also the low birth weight baby, and also the abortion, and also the congenital defect in the fetus. Actually, I see today, here there is a 4,500 delivery per year in Zydus Medical Hospital, right? And the sickle cell crisis is not that significant. It is less than 2%. So if we correct the pregnant mother with severe this maternal malnutrition, we can definitely prevent this crisis and also the complication of sickle cell anemia. A very, very pertinent point, Dr. Bharat Bhai, because as you said, this maternal nutrition also has a significant role. And as we are seeing, these newborns, these innocent babies, Right. they are suffering for no fault of theirs, it's only because they have inherited this. This proves a point. Undergo newborn screening programs in every obstetric center as soon as possible, because if we are from sickle cell disease and put them and channelize their management, will certainly save a lot of end organ damage and episodes of is more or less consensus on starting hydroxyurea as early as possible for even for children. So I think newborn screening has a great role, and we all should vouch for it, and very much create a pressure group to ensure wherever possible in our institutes, maybe our NGOs or trust and hospitals or through government, we have to undertake newborn screening projects very rapidly, because that is going to change the scenario of the patients suffering from sickle cell disease. I think we have had a very, very important and very meaningful discussion so far in the 40 minutes we have spent. If there are any other inputs to otherwise, Dexter bhai, I would request you to share your views, and કોઈને પણ કંઈક સવાલ હોય કે કંઈક કહેવા માંગતા હોય, ભાઈ પ્લીઝ. જી સર, પ્રથમ તો પહેલી આપણે સિકલ સેલ પર વાત કરી રહ્યા છે, એ જ બહુ મોટી વાત છે કે ઘણા આપણે જાણીએ છીએ કે હજુ પણ ઘણા બધા લોકો અનઅવેર છે સિકલ સેલની બાબતે. એવું નથી કે એ લોકો કે એમને ખબર નથી એટલા માટે અવેરનેસ છે. આપણે હજુ પણ 70% લોકોને, આપણે જે પોપ્યુલેશન છે એની 70% લોકોને સિકલ સેલ વિશે જણાવવું પડશે, એને અવેર કરવાની જરૂર છે. તો એકવાર એ લોકો અવેર થશે તો આપણે જે ટ્રીટમેન્ટ પાર્ટ છે, પ્રિવેન્ટિવ પાર્ટ છે અને સોશિયલ પાર્ટ છે, એ ત્રણે પાર્ટ આપણે કવર કરી શકીશું. અને આપણે જે સરકાર જે પ્રોગ્રામ ચલાવી રહેલી છે એ પ્રોગ્રામને આપણે અંદર સુધી લઈ જઈ શકીશું, જ્યાં સુધી એ લોકો જાગૃત નહીં થશે. કે હાલમાં 30, 35, 40% લોકો ઘણા બધા જાગૃત થયા છે. એટલા માટે જાતે આવે છે કે ભાઈ મારે પ્રી ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કરાવવો છે અથવા તો મારે સિકલ સેલ ટેસ્ટ કરાવવો છે, એ આપણે જોયું છે. હજુ પણ આપણે જો થોડું વધારે મહેનત કરીશું, બધા લોકો વોલેન્ટિયર્સ તૈયાર થશે, ગામના લોકો તૈયાર થશે, એમના જે યંગ જનરેશન છે એ લોકોને આપણે સમજાવીશું, તો એમના જે સોશિયલ પ્રોબ્લેમ છે, બીજા બધા લગ્ન નથી થતા અને બીજા બધા જે કોમ્પ્લિકેશનો થાય છે તે પણ થોડા ઓછા થશે. એમને રિહેબિલિટેશન માટેની વાત છે અથવા એમને ભણાવવાની વાત છે, જો એ બધા ધીરે ધીરે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે તો આપણે ડેફિનેટલી એમને આપણે સારું જીવન જીવવા માટેની પ્રયાણ કરી શકીશું. આપણે જે સિકલ સેલ એનિમિયા બર્થ કંટ્રોલની વાત કરીએ છીએ તે કરી શકીશું. અને જે લોકોને સિકલ સેલ એનિમિયા હમણાં છે તો એમનું હેલ્ધી જીવન જીવવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે તેમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ કરી શકીશું, જેથી કરી એ પણ એ લોકો આપણી જે નોર્મલ લાઈફની અંદર આપણે જે નોર્મલ હરોળ છે એમના આવી શકે. તો આ બધા જે બધાના જે સહિયારા પ્રયાસો છે તેનાથી આપણે આજે એ પરિણામ જોવાઈ રહ્યું છે, નજરે ચડી રહ્યું છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ થોડો બદલાવ આવ્યો છે. અને આપણે હજુ પણ થોડું કામ વધારે કરીશું, બધા ભેગા થઈને કામ કરીશું. જેટલી બધી એનજીઓસ છે, બીજી સંસ્થાઓ છે, સરકારી સંસ્થાઓ છે, બધા ભેગા થઈશું તો કદાચ આપણે સારું પરિણામ સારામાં સારું લાવી શકીશું. બિલકુલ મહેનતની જરૂર છે અને મહેનત કરીશું.
તો આનાથી પણ સારું પરિણામ આપણે લાવી શકીએ. એની માટે તમારા બધા જ લોકોનો અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. એટલે એક પહેલી વાત છે કે સાહેબ તમે આપણે બધા જે ડોક્ટર છે, બીજા વોલન્ટિયર છે, આવો કિંમતી સમય તમારો આપી રહ્યા છે 1 કલાકનો, એ બહુ મોટી મહત્વની વાત છે. એ જ તમારું ડેડિકેશન બતાવી રહ્યું છે કે ભાઈ તમે કશું સારું કરવા માંગી રહ્યા છો. આપણે બધા જ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ જેથી કરીને સારું પરિવર્તન અને સારું પરિણામ લાવી શકીએ. એટલે પહેલી વાત તો બધાનો ધન્યવાદ, શાંતિકર સાહેબનો બી ધન્યવાદ, ખત્રી સાહેબનો, પરમાર સાહેબનો અને આપણે અંકિત સાહેબનો અને બધા જ જે પાર્ટિસિપેટ છે એમનો, કે એમને આટલો કિંમતી સમય કાઢીને પણ આપણે દર મહિને આવે છે અને વાતો કરે છે. એ વાતો કરવી એ જ તમારી પહેલા સફળતાની એક નિશાની છે કે આપણે સફળ થઈશું અને એની માટેનું આ ડેડિકેશન છે. એટલા માટે દરેકનો અમે તહે દિલથી ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આભાર સર. થેન્ક યુ ભાઈ. આપ જોઈ રહ્યા છો કે સિકલની વાત હવે ધીરે ધીરે પ્રસરી રહી છે. હમણાં ગયા મહિને જ જે આપણે વર્લ્ડ સિકલ સેલ ડે હતું, એમાં પણ ઘણા બધા વેબિનાર્સ બી થયા, મીટિંગ્સ બી થઈ, એની ચર્ચા બી થઈ, પ્રેસ મીડિયામાં પણ એની નોંધ લેવાઈ. તો ચોક્કસથી આપણો જે ટાર્ગેટ આપણે મગજમાં રાખેલું છે ને આપણું ગોલ છે, આપણે ચોક્કસ અચીવ કરશું. ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ તમે જેમ કીધું સમજાવવાનું ડોક્ટર્સની સાથે સાથે કાઉન્સિલર્સનો પણ છે. અને અત્યારે આપણી જોડે જે કાઉન્સિલર્સ જોડાયા સારું કામ કરી રહ્યા છે, અભિનંદન પાઠવા જેવું છે. અને એમના માટે એક ખાસ વાત કરું કે બહુ જલ્દી અમે એક મોટું ભેગા કરી રહ્યા છીએ. એક્સપર્ટ સ્પીકર હશે અને સિકલના દરેક પાસાને એક બધા કાઉન્સિલર્સને આપણે અપડેટ કરી નાખીએ, જેથી કરી એક કાઉન્સિલર આપણી વાત સુધી લઈ જઈ શકે. અને આપણા સાથ ને 1 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા એકચ્યુઅલી. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન બધાને, ખાસ કરીને ડેક્સ્ટરભાઈ ને કે ખરેખર સાથ ને સાથે રાખવામાં સૌથી મોટો ફાળો એમ કહીએ તો ડેક્સ્ટરભાઈ નો જ છે. આપણે બધાનો જ છે, અને દરેક વખતે આપણે એક ફેકલ્ટી લાવીને એક ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટની ચર્ચા કરીએ છીએ અને ધીરે ધીરે પણ એ સ્લોલી એ આપણી મહેનત રંગ લાવશે એવું મને ચોક્કસ ખાતરી છે. અને આપણે આવી એક્ટિવિટી કન્ટિન્યુ જ રાખશું. દર મહિનાની 7 તારીખે 7 વાગે ડેફિનેટલી ભેગા થઈશું. ચાલો, થેન્ક યુ એવરીબડી. Thank you, sir. Good night. થેન્ક યુ. હેવ અ ગુડ ડે. Good night. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Okay, thank you. Good night. Okay.